Hello everyone. Student, we were doing colligative property. Already I have taught that relative lowering in the vapor pressure. Today I will explain osmotic pressure. This one is also important for your board examination purpose. So be sincere about your study. 1 or 3 marks of question definitely come in your board examination. Now I am going to take this one, osmotic pressure, and before going to introduce osmotic pressure, one simple point that you have to understand, that is osmosis. Osmosis. So for osmosis I am giving you 2 points that will help to understand osmosis. First point is SPM and second point is lower concentration to higher concentration. So firstly I introduce SPM. SPM is a semi permeable membrane. Okay, SPM is a semi permeable membrane. So SPM is just like filter paper. Okay, so SPM is a semi permeable membrane and it is just like filter paper. So how can we get SPM? SPM we can get with the help of animal tissue, and we can get by the plant tissue, and man-made SPM also can prepare. So that one is artificial tissue. So artificial membrane. Okay, so it is just like filter paper. So what kind of work will do SPM? With the help of SPM only lower concentration of solution can move. So lower concentration moves toward higher concentration. I am rubbing this one. I will write after this point. So with the help of SPM only lower concentration of solution moves toward through SPM. Okay, so lower concentration of solution moves through SPM. Okay, and so by this point you can understand only lower concentration moves toward. So now I am going to take one example to understand what kind of work SPM will do and which kind of phenomena will we get for these terms to understand osmosis. So student, I am taking 2 egg. Okay, 2 egg, and now I am going to remove the hard layer of egg, calcium carbonate, with the help of HCl solution. So firstly I remove hard layer of egg, that is CaCO3. You have seen the hard layer of egg is in white color, and hard layer, that is calcium carbonate. This layer we can remove by hydrochloric acid, by HCl. Okay, after then both egg placed in different solution. Okay, both egg I am placing in different solution to understand phenomena of osmosis. Okay, now first egg I am putting in NaCl solution. This one is NaCl solution. ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग क्या है ये सारी कहानी? बड़े प्यार से समझो,
प्यार से इसलिए क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो ऑस्मोसिस समझ में आएगा. आफ्टर देन यू कैन अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, and osmotic pressure of one formula will also you will study, and then numerical I will explain. So बहुत अच्छे से एकदम मन लगा के समझो, ठीक है. अपना कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना है. तो देखो एक बीकर में हमने क्या लिया, NaCl, और इसमें क्या डाल दिया, एग डाल दिया. इधर एक और बीकर लिया, सेकेंड बीकर, एंड इसमें हमने क्या लिया, वाटर H2O, और इसमें भी क्या डाल दिया, एग. अब क्या होगा, तुम लोग को पता है एग के ऊपर का हार्ड लेयर CaCO3 हट चुका है, हट गया ना. अब इसमें क्या बचा है, इसमें केवल इसकी पतली सी लेयर यानी कि थिन लेयर है, जिसे हम लोग झिल्ली जैसा कह सकते हैं. तो वो जो थिन लेयर है ना, वो किसका काम करेगी, वो किसका काम करेगी, SPM का काम करेगी. ठीक समझ रहा हो, यहाँ पर भी थिन लेयर है और वो किसका काम करेगा, SPM, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का. अब देखो इस एग के अंदर क्या होता है, इस एग के अंदर होता है लिक्विड, होता है कि नहीं होता है. तो अब ये लिक्विड और ये किस में रखा गया है, NaCl में. इन दोनों में से देखो कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है. तो इन दोनों में से ये केवल लिक्विड है और ये NaCl का जो एक सॉल्यूशन है. तो इसमें देखो वाटर में NaCl मिलाया गया होगा तभी ना सॉल्यूशन बना होगा. तो इसका मतलब ये इन दोनों में से कंपेयर अगर किया जाए तो ये क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा, और ये क्या होगा इसके कंपेयर में लेस कंसंट्रेटेड होगा. अब बताओ SPM का क्या काम है. SPM का काम है केवल लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को क्या करना है, आर पार जाने देना है. तो इन दोनों में से लोअर कंसंट्रेशन वाला कौन सा है, ये है लोअर. ये क्या होगा, आर पार जा सकता है, ये नहीं जा सकता. तो ये क्या होगा, इस झिल्ली से होते हुए इस कंटेनर में आ जाएगा, बाहर निकल आएगा. और इस वजह से क्या होगा, तुम्हारा एग कुछ टाइम बाद तुम देखोगे तो यहाँ पर हम बना देते हैं, कुछ टाइम बाद जो बीकर होगा उसमें ये सॉल्यूशन बढ़ के इतना हो जाएगा, मीन्स पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगा, और एग श्रिंक होकर के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. ये हमने काफ़ी छोटा बना दिया है, तुम अपने हिसाब से अच्छे से बनाना. तो यहाँ पर क्या दिखाओगे कि जो एग है वो क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है. समझ रहे हो क्यों श्रिंक हो गया है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन वाला किसकी तरफ गया, हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गया, और एग के अंदर का सारा सॉल्यूशन निकल गया है. तो एग कितना हो गया है, छोटा हो गया है, श्रिंक हो गया है. ठीक. अब दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर क्या था, बीकर में क्या था, वाटर. एग में क्या होता है, लिक्विड होता है ना. अब क्या होगा, दोनों में से बताओ कौन लेस कंसंट्रेटेड है. तो वाटर क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है, बहुत अच्छे से समझना. और लिक्विड क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है. यहाँ पर लिक्विड वाटर के कंपेयर में मोर कंसंट्रेटेड है. दोनों को पहले कंपेयर करो, पानी वाटर सिंगल है ना, तो ये क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड, और लिक्विड विल बी मोर कंसंट्रेटेड. ठीक, क्लियर हो गया. तो अब बताओ कौन किसके पास जाएगा, कौन किसके, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के कौन सा लिक्विड जो है निकल सकेगा, यानी कि इसके आर पार जा सकेगा. तो इससे लोअर कंसंट्रेशन वाला लिक्विड ही आर पार जाएगा. तो अब क्या हो जाएगा, ये जो एग है ना इतना छोटा सा था, अब ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वाटर इसके अंदर आ गया, और बीकर में वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. समझ रहे हो. तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लोअर कंसंट्रेशन वाला किसकी तरफ गया, हायर कंसंट्रेशन की तरफ गया. क्लियर. ये जो हमने पूरी ओवरऑल ये जो कहानी बताई है ना, दैट मीन्स ओवरऑल फिनोमेना. ओके, दिस फिनोमेना इज टेलिंग अबाउट ऑस्मोसिस. इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं. समझ रहे हो. तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, व्हेन लोअर concentration of solution moves toward higher concentration. So this phenomena is known as, this phenomena
इज नोन एज क्या, व्हाट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। समझ गए, क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस समझ में आ गया। इसमें क्या यूज किया हमने, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने क्या काम दिखाया, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को अपने आर पार जाने दिया और इस वजह से एक जगह क्या हो रहा था, एग आपका श्रिंक हो रहा था, क्योंकि समझ गए ना, यहाँ पर क्या था, लोअर कंसंट्रेशन किसका था, लिक्विड का था, इसीलिए बाहर निकल गया। और यहाँ लोअर कंसंट्रेशन किसका था, वाटर का था, जो एग के अंदर जा करके क्या हो गया, स्वेल हो गया। क्लियर, तो ये पूरा फिनोमेना क्या है, ऑस्मोसिस है। अब ये अगर समझ गए हो तो आप समझाएंगे तुम लोग को हम ऑस्मोटिक प्रेशर। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो थैंक यू। तो अब चलो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हम एक छोटा सा तुम लोगों के लिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हम बोर्ड पे ही दिखाएंगे, जिसको देख के तुम लोग समझना कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। तो देखो एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में हमने फिर से क्या भर दिया, वाटर। जब तक सॉल्यूशन चैप्टर चलेगा तब तक ये बीकर और पानी ये सब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनको साथ में लेके चलना है। अच्छा इस वाटर है तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये देखो ये ऐसा चीज देखा है तुमने, ये फनल होता है, देखा है कि नहीं, देखा है, देखा होगा, जरूर देखा होगा, लैब में प्रैक्टिकल हमने करवाया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने किया है तो उन बच्चों ने भी देखा है, हमारे बच्चे हमारी लैब में देखे होंगे। चलो अच्छा देखो ये क्या है, फनल है। इसमें अगर इसकी ये जो नेक है ना, ये अगर लंबी कर दी जाए तो इसे बोलते हैं थीशल फनल। क्या बोलते हैं, थीशल फनल, ठीक है, तो ये थीशल फनल है। अब इस थीशल फनल को हम उल्टा करके इसमें रख देंगे। तो इसको हमने उल्टा किया और इस तरीके से रख दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, इस तरीके से रखा और इसकी इस जगह पे हमने क्या लगा दिया, एसपीएम। एसपीएम समझते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस थीशल फनल के अंदर हमने भर दिया था क्या, एक कंसंट्रेटेड लिक्विड। कैसा लिक्विड, कंसंट्रेटेड लिक्विड, जैसे कि हमने NaCl भर दिया, समझ रहे हो। और यहाँ बीकर में क्या था, वाटर था, ठीक है। अब क्या होगा, ये एसपीएम क्या करेगा, तुम लोगों को अच्छे से पता है एसपीएम क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन वाले को हायर की तरफ भेजेगा। तो अब इसमें से लोअर कंसंट्रेशन कौन सा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, लोअर है, ठीक है, ये लेस कंसंट्रेटेड है, और NaCl क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है। बहुत अच्छे से समझना, इन दोनों में से लेस कंसंट्रेटेड कौन सा है, वाटर क्या है, लेस कंसंट्रेटेड, और NaCl जो इसके अंदर भरा है वो क्या है, मोर कंसंट्रेटेड। और यहाँ पर इसके थीशल फनल के माउथ पे क्या लगा हुआ है, SPM, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है ना। अब इससे क्या हो करके जाएगा, तो इससे क्या होगा, वाटर जो है इसके अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा तो फिर लिक्विड का सॉल्यूशन क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक, इतना क्लियर। अब क्या होगा, ऊपर देखो, ऊपर ये खुला हुआ है तो यहाँ से क्या आएगा, एयर भी तो अंदर जाएगा, इतना समझना। यहाँ से क्या होगा, एयर अंदर जाएगा। अब एयर अंदर जा रहा है और ये लिक्विड ऊपर बढ़ रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि लिक्विड ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगा। और क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि एयर का प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। एयर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर क्यों एक्सर्ट कर रहा है, अंदर जाने के लिए, और लिक्विड ऊपर आ रहा है तो एक टाइम आएगा ये बंद हो जाएगा। तो जो लिक्विड ऊपर आ रहा था ना, ये ऊपर जाने के लिए प्रेशर लगाएगा और एयर नीचे आने के लिए प्रेशर लगाएगा। ये देखो ऊपर जाने के लिए, और ये क्या करेगा, नीचे आने के लिए प्रेशर लगाएगा। तो ये जो ऊपर जाने के लिए प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पर हो क्या रहा था, कौन सा फिनोमेना हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था ऑस्मोसिस। क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से जो प्रेशर लग रहा है ऊपर जाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। समझ गए ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, समझ गया तुम लोग। इसमें क्या हो रहा है, इस बीकर में थीशल फनल से
SPM लेयर की हेल्प से क्या जा रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन वाला हायर की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे इसके अंदर का जो ये नेक है इसके अंदर सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये जो है यहाँ से वाटर एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऊपर से क्या लगने लगा, एयर का प्रेशर। तो एयर के प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो अंदर जो जा रहा था वो पीछे की ओर ढकेलने लगा, और लेकिन वाटर का काम क्या है, अंदर जाना। तो इस वाटर की वजह से यहाँ पर इस जगह पे एक प्रेशर होगा, प्रेशर लगेगा कि वाटर लिक्विड ऊपर जाना चाह रहा है, वो प्रेशर लगाएगा ऊपर जाने के लिए, और ये एयर प्रेशर लगा रहा है अंदर जाने के लिए। तो ये दोनों का प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा, तो कौन सा प्रेशर किसके इक्वल हो गया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके इक्वल क्या हो गया, ये जो ऑस्मोसिस से जो प्रेशर लग रहा था वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी प्रेशर को जो ऑस्मोसिस से लग रहा था उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए हो तुम लोग बहुत अच्छे से। अब चलते हैं डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल, इसी के तो इक्वल हो गया, तो एक्सटर्नल प्रेशर which should be applied on the solution to prevent, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, to prevent the flow of solvent समझ रहे हो, solvent का मतलब water into the solution through SPM। जो हमने समझाया उसी को एक डेफिनेशन का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो तुम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, क्या पता है, PV इज इक्वल्स टू NRT, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर PV इज इक्वल्स टू NRT, P का मतलब प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, N मीन्स नंबर ऑफ मोल, R गैसियस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इस P को यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है, पाई। क्लियर, राइटिंग समझ में आ रही है। ठीक है, चलो हम ध्यान रखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, बट यू कैन राइट विद मी। ओके, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से। तो यहाँ पर P की बजाय हम लोग इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, पाई। ठीक है, इसी को और करके हम लिख देते हैं पाई V इज इक्वल्स टू NRT। समझ गए। अब बताओ क्या होगा, ये V को हम यहाँ पर केवल पाई का फॉर्मूला बनाए तो V इज इक्वल्स टू N अपॉन V RT लिख सकते हैं। ये V N के नीचे भेज दिया। अब ये हम लोग को पता है कि N अपॉन V को क्या कहते हैं, C, यानी कि क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। याद है कि नहीं याद है, चलो हम बता देते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो N अपॉन V इज इक्वल्स टू C, डेट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की का मतलब मोलैरिटी, तो इसको यहाँ पर C से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब किसको क्या बोलते हैं वो भी प्यार से लिख लो, लिखोगे पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यही लिखोगे ना। ठीक, C इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन एंड T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, और R तुम लोग को पता है क्या है, गैस कांस्टेंट। वैल्यू इसकी क्या रखोगे, 8.3, तो R 8.3। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे।
अच्छा, अभी हम न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने से पहले तुम लोग को एक और फिनोमेना एक्सप्लेन कर देते हैं जो ऑस्मोसिस से थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो क्या मिलता जुलता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हम रफ करते हैं और यहाँ पर तुम लोग को बताने जा रहे हैं हम ऑस्मोसिस से मिलता जुलता एक सेकेंड नेक्स्ट टर्म क्या है, डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन होता क्या है, तो डिफ्यूजन जो है ऑस्मोसिस में क्या कर रहे थे, देखो एक कंटेनर लिया, एक हमने दीवार लगा दी, ठीक है, इसको हम हटा भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इसमें क्या फिल किया, H2O, इसमें फिल किया NaCl सॉल्यूशन। इसको जब हमने हटा दिया तो बताओ क्या होगा, ये NaCl वाटर की तरफ जाएगा और वाटर किसकी तरफ जाएगा, NaCl की तरफ। कब तक जाएंगे, जब तक ये पूरा मिक्स होकर के क्या ना बना ले, एक प्रॉपर सॉल्यूशन ना बना ले, तब तक जाएंगे। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में SPM की जरूरत नहीं होती है। तो अब अगर हम लोग डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन हम लोग उससे लिखते हैं, डिफरेंशिएट से, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम किसमें, ऑस्मोसिस में और किसमें, डिफ्यूजन में। तो बताओ इसमें हमने क्या किया था, इस पे SPM यूज किया था, इसमें नहीं किया था, और इसमें यूज किया था। तो इसमें क्या होगा, SPM क्या होगा, रिक्वायर होगा फॉर दिस फिनोमेना, और इसमें SPM नॉट रिक्वायर। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो अपनी तरफ से बढ़ा के भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इसमें लोअर कंसंट्रेशन मूव होता है, मूव्स टूवर्ड हायर कंसंट्रेशन। और इसमें क्या होगा, इसमें बोथ, ठीक है, बोथ काइंड सॉल्यूशन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। तो डायरेक्शन। एक लास्ट पॉइंट समझो, ऑस्मोसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी स्टॉप, इसको चाहे तो हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट रिक्वायर, लेकिन इसको हम लोग डिफ्यूजन को हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी स्टॉप। क्लियर। चलो, अच्छा अब एक चीज हम बता दें, ऑस्मोसिस जो है आपका बायोलॉजिकल फिनोमेना है। कैसे है, जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं ना, तो उनकी बॉडी में क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो जब वो वाटर पीते हैं तो जहां पर उनकी टिश्यूज में मीन्स वो क्योंकि ब्लड में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो ब्लड या फिर उनकी टिश्यूज वगैरह में, तो वो वाटर उतना ही ज़्यादा पीते हैं। इस वजह से उनकी बॉडी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वाटर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन है और NaCl क्या है, हायर कंसंट्रेटेड है। तो लोअर कंसंट्रेटेड जो है हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और फिर अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर वाटर उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा उसके तरफ जाएगा और उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, मीन्स उसमें फिक्स हो जाएगा। जैसे सॉल्ट आपकी बॉडी में ज़्यादा है, वैसे ही क्या हो जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा और वो वहाँ पर परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोगों की बॉडी जो होती है, कम खाते भी हैं फिर भी उनकी बॉडी में स्वेलिंग बनी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, एडेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेमा। तो ये जो डिजीज है एडेमा, ठीक, एडेमा क्यों होता है, समझ में आ गया ना, कि जो लोग सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं इस वजह से क्या होता है, उनको वो जितना वाटर पीते हैं उनकी बॉडी में वो प्रिजर्व होता चला जाता है और इस वजह से उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। इसको क्या कहते हैं, एडेमा कहते हैं। क्लियर। ये भी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने ये बाकी के टर्म एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन चारों टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बी रेगुलर फॉर योर स्टडी and do your homework regularly. Don't waste your time. This is very precious time for you.
Okay, so thank you so much. Take care. Bye bye.